Hello dear students, today we are going to start unit 3 of engineering mechanics, equilibrium. Okay, so first of all, what is mean by equilibrium? Any body is said to be in equilibrium when the resultant forces acting on the body is zero. Okay, when resultant of resultant of forces or force system on it is zero. Okay, when we will say that body is in equilibrium when number of forces acting on the body, suppose this is the body, okay, and if number of forces acting on the body means resultant of these forces is zero, when r is equal to 0, then we can say that body is in equilibrium. For example, the best example of equilibrium is building or any civil engineering structure. Okay, in building, any type of building, residential building, educational building, commercial building, okay, there are number of forces acting on the building like live load, dead load, still building is in rest condition. Okay, means what, the forces acting on it and the resultant of those forces इज ज़ीरो. ठीक है, तो उसको कहेंगे बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, सो व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल रिमेन इन द रेस्ट कंडीशन, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, व्हेन आर इज ज़ीरो, when r is 0, summation fx is equal to 0 and summation fy is equal to 0. Now this resultant may be of forces or resultant may be of moment. So here sum of moment of all forces is equal to 0. ठीक है, so when the sum of forces is equal to 0 or resultant of sum of forces is equal to 0 means there is no translation, and when sum of moment is equal to 0 means there is no rotation. ठीक है, so this is the equilibrium. Now I will again explain how these forces will become zero. ठीक है, suppose this is body. okay, एक body है ये, ठीक है. Now this body is under the action of two forces. Let's say that force is F1 and force F2. okay, when we will see say that this body is in equilibrium, sum of these forces is equal to 0. ठीक है, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, ठीक है, तभी ये बॉडी इक्वली, अगर ये फोर्स बढ़ा रहा तो बॉडी इधर जाएगी. इफ दिस फोर्स इज बिगर देन बॉडी विल गो इन दिस डायरेक्शन. व्हेन द बॉडी विल बी इन रेस्ट कंडीशन व्हेन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल मीन्स व्हाट, F1 is equal to F2 means F1 minus F2 is equal to 0. ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. सो प्लस माइनस क्या रहता है, सम forces in x direction is equal to 0. So this is the first equilibrium condition, summation fx is equal to 0. ठीक है, now similarly if this body is there, forces are acting on this body like this F2 F1 means what, F1 is equal to F2. बॉडी रेस्ट में कब रहेगी, जब दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे. मतलब क्या, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0. या ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस यानी समेशन फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में जा रही है, फोर्सेस y डायरेक्शन में. सो इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, और एक थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन है,
रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो यानी क्या, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. सपोज दिस इज द बॉडी, हियर इज द फोर्स एम ए एंड हियर इज द फोर्स एम बी. व्हेन दी सॉरी मोमेंट, हियर इज द मोमेंट एम ए एंड मोमेंट एम बी. ओके, सो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगी बॉडी, जब एम ए इज इक्वल टू एम बी रहेगा. मतलब क्या, एम बी माइनस एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ द थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन. जो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो आपको याद रखने हैं. समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, ए इज एनी पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो. ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखने. यूनिट 3 और यूनिट 4 में पूरा सारा खेल ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे ही है. ये अगर आपको आता है तो आपको कुछ भी आ जाएगा यूनिट 3 और 4 में. ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर द डिफरेंट फोर्स सिस्टम. वी विल सी दैट. First is coplanar concurrent forces. Coplanar concurrent force system. Okay. So coplanar concurrent means what? एक ही प्लेन है. ठीक है, एक ही प्लेन यानी क्या, वहाँ पे सिर्फ x और y रहेगा. कॉन्करेंट यानी क्या, एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, मतलब सभी फोर्सेस एक पॉइंट से ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंट रहेगा ही नहीं, सिर्फ x और y, मतलब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. मोमेंट आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि एक ही पॉइंट पे सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. ठीक है, कोप्लेनर है यानी क्या, एक्स वाई आ गया. नॉन कॉन्करेंट यानी क्या, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. ठीक है, मतलब क्या, डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे मोमेंट आएगा. फिर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. Now the third force system is non-coplanar concurrent. Non-coplanar concurrent forces. Non-coplanar यानी क्या आ गया वहाँ पे, x y z. कॉन्करेंट आए तो फिर मोमेंट m जो है यहाँ पे रहता ही नहीं है. ठीक है, एम मोमेंट आएगा ही नहीं, मोमेंट आएगा ही नहीं. फिर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ द फोर्थ, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट. फोर्सेस. नॉन कोप्लेनर यानी फिर से एक्स वाई जेड आ गया. नॉन कॉन्करेंट यानी क्या, वहाँ पे अब मोमेंट आएगा, तो मोमेंट भी क्या आएगा, एम एक्स, मोमेंट एम वाई, मोमेंट एम जेड. तो यहाँ पे नॉन कॉन्करेंट में मोमेंट जो हम लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे लेते, पॉइंट पे नहीं लेते. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस विल बी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो and sum of moment about x is equal to 0, sum of moment about y is equal to 0, sum of moment about z is equal to 0. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है. Now the next concept is
free body. Okay, so what is mean by free body? Free body यानी क्या? It is the body which is separated from the all other bodies or system. ठीक है, सपोज यहाँ पे दो bodies है, एक प्लेन पे रखे हुए दोनों भी bodies. Now these bodies are connected to each other. Okay, if we will separate, suppose this is body and this is body B. Now this body is separated from this body and this body is separated from this body. So this is called as the free body. The next concept is free body diagram, very important. It is very important. Free body diagram. Okay, it is an isolated view of the body representing all the forces acting on it. ठीक है, so free body diagram यानी क्या? Diagram which shows the forces acting on the body, which is separated from the system or isolated from the system. Now see व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम. हमने लैडर फ्रिक्शन में देखा है फ्री बॉडी डायग्राम क्या रहता है, ब्लॉक फ्रिक्शन में देखा है. ठीक है, तो लैडर जो है वो हम सेपरेटली उसको ड्रॉ करते थे, उसके ऊपर जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे वो हम शो करते थे. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है. दिस बॉडी इज ए, दिस बॉडी इज बी. ओके, दिस बॉडी हैज़ वेट, some weight, let's say 100 Newton. WA is equal to 100 Newton and WB is equal to 50 Newton. ठीक है, अभी क्या करना है, बॉडीज़ को सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है. ठीक है, A and B. ओके, सो यहाँ पे वो बॉडी रखी हुई है. ठीक है, दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो दिस प्लेन इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू दिस बॉडी. ओके, दैट सपोर्ट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिएक्शन at A and here the normal reaction at B. Both bodies having weight WA and WB. Now these body are here, these bodies are connected to each other. ठीक है, सो ये बॉडी का फोर्स जो है थोड़ा बहुत ये बॉडी पे लग रहा है और इस बॉडी का फोर्स जो है थोड़ा बहुत इस बॉडी पे लग रहा है. तो ये बॉडी का फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना. सो ये हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. सो इसको हम कॉन्टैक्ट रिएक्शन कहेंगे और ये बॉडी का फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो ये कॉन्टैक्ट रिएक्शन. सो ये जो कॉन्टैक्ट रिएक्शन रहता है दिस इज ओनली वन क्वांटिटी. ओके, ये एक ही है. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन अपोजिट रहती है. सो ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम. जब भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है यूनिट 3 और यूनिट 4 में. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए 1 या 2 मार्क कंपलसरी रहते हैं. अगर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम सही है, वो सही है, तो आगे का प्रॉब्लम देखा जाता है. अगर फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत है और आपका पूरा सॉल्यूशन सही है तो इसका मतलब है आपने आगे पीछे से कहीं तो भी कॉपी कर लिया है. ठीक है, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है. जो भी फोर्सेस नेसेसरी है, एक भी फोर्स कम नहीं, एक भी फोर्स ज़्यादा नहीं दिखाना है आपको. ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट forces. So equilibrium under one force. ठीक है, एक ही फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है. एक भी बॉडी ऐसी नहीं कि जिस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट हो रहा है. हर एक बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट होते हैं. सो इक्विलिब्रियम अंडर वन फोर्स इज not possible. Equilibrium under one force is not possible. ठीक है, then equilibrium under two forces.
पॉसिबल है, बस कंडीशन एक है कि बोथ फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, और एक कंडीशन है कोलिनियर। ठीक है, मतलब क्या, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी को आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इस बॉडी के ऊपर जो भी दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं दोज मस्ट बी कोलिनियर, एक लाइन में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए। जैसे कि अगर ऐसे भी रहे तो भी, ठीक है, देन ओनली इक्विलिब्रियम अंडर टू फोर्सेस इज पॉसिबल। इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस, थ्री और मोर फोर्सेस जब रहेंगे, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, so it is possible. Okay, how to determine those forces? It can be determined by Lami's theorem. ठीक है, so what is Lami's theorem? हम देखेंगे वो। Equilibrium under three forces. ठीक है, equilibrium under three forces can be possible by Lami's theorem. ठीक है, सो लैमिस थ्योरम क्या है? When three coplanar concurrent forces let's say those forces are P, Q, R. Okay, P, Q, R, these three concurrent forces, ठीक है, then each force is directly proportional to the sine of angle between other two forces. This P force is directly proportional to sine of angle between these two forces. Let's say that angle is alpha, this is beta and this is gamma. ठीक है, so Lami's theorem states that P upon, ये साइन रूल की तरह है, P upon sin alpha, Q upon sin beta and R upon sin gamma. सो दिस इज लैमिस थ्योरम। ठीक है, अगर आपको लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, लैमिस थ्योरम आपको अप्लाई नहीं करना है, तो आप फोर्सेस को रिजॉल्व करके भी कर सकते हो। ये आर फोर्स वर्टिकल है, फिर इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स आपको लेना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है, ये एक मेथड है लैमिस थ्योरम, और दूसरी मेथड है बाय मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड टेकिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। तो आप फोर्सेस फाइंड कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी आप कर लीजिए। बस लैमिस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल है। अगर उसमें चौथा फोर्स आ जाता है तो आपको ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। Okay, here is the numerical given. ठीक है, two persons lift a mass of 100 kg by cables passing over the pulleys. Determine the forces P and Q applied by the persons if the body is in equilibrium. ठीक है, सो यहाँ पे दो पर्सनस है, वो ये 100 kg वेट जो है वो लिफ्ट करे, ठीक है। कैसे? ये रोप जो है वो नीचे खींच के, ठीक है, ये यहाँ से पुली के ऊपर रैप हुई है। सपोज दिस फोर्स इज P and this force is Q and this is the 100 kg मास है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। देखिए, ये क्या आएगा, 100 kg का आपको
न्यूटन में कन्वर्जन करना है, क्योंकि ये मास है, इसको हमको वेट में कन्वर्ट करना है. सो इट विल बी 981 न्यूटन. ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना है वेट. अगर ये 45 है तो ये पूरा कितना आएगा, 90 + 45 ये आएगा 135. ठीक है, ये 30 है और ये 90 है. 30 + 90 120 भी 120. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 180 में 360 में से आपको 120 और 135 माइनस करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो. देखिए ये 180 है, 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 105. ठीक है, तो आपको इसमें कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये एंगल फाइंड करते आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से. यहाँ पे इन्होंने 45 दिया है और ये 90 है, 90 + 45 आता है 135. यहाँ पे 30 दिया है, ये 90 है, 90 + 30 ये 120 आएगा. और रिमेनिंग जो है ये पूरा एंगल जो रहता है वो 360 रहता है. 360 में से आप ये और ये माइनस कर सकते हैं, या 180 में से 30 और 45 माइनस कर सकते हैं, तो आपको 105 मिलेगा. सो बाय लैमिस थ्योरम, P upon sin 135 is equal to Q upon sin 120 is equal to R जो है 981 upon sin 105. सो यहाँ से आपको P की वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. 981 इंटू साइन 135 डिवाइड बाय साइन 105. ठीक है, ये आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है. और सिमिलरली आपको क्यू भी फाइंड करना है. ठीक है, 981 इंटू साइन 135 डिवाइड बाय साइन 105. तो आंसर आता है 718.14 न्यूटन. एंड Q इज इक्वल टू 981 इंटू साइन 120 डिवाइड बाय साइन 105. ये आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर देखिए कितना आता है. 981 इंटू साइन 120 डिवाइड बाय साइन 105. सो इट विल बिकम 879.54 न्यूटन. ठीक है, दिस इज द आंसर. विल टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. Weight of sphere is 1000 Newton. Find the reaction at A and B. Here is the A point and here is the B point is given. ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन. अभी देखिए जो कुछ भी रिएक्शन रहते हैं हम उसको सपोर्ट रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो वो हमेशा ये प्लेन जो रहता है इसको परपेंडिकुलर रहता है. ठीक है, ये जो रहता है इसको परपेंडिकुलर रहता है, और यहाँ पे भी ये जो है इसको परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. लेट्स से दिस रिएक्शन इज एट B RB एंड दिस इज रिएक्शन एट A RA. ठीक है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 होगा तो ये भी क्या होगा 45. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने ड्रॉ किया है. देखिए यहाँ पे फोर्सेस शो किए हैं RB और आपको सेपरेट से अलग डायग्राम निकाल के आपको शो करना है. ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा फोर्स. ठीक है,
So RA is acting horizontally, rightward RA, ठीक है. RB it is acting downward 1000 Newton, and RB is acting like this. ठीक है. सो इट इज़ 45 डिग्री. अभी आपको क्या करना है, तीनों भी फोर्सेस से उसका एंगल आपको फाइंड करना है. ये दो फोर्स के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री. ठीक है. ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या रहेगा, 180 माइनस 45 135. एंड व्हाट विल बी दिस एंगल, ये क्या रहेगा 90 प्लस 45 135. ठीक है. तो बाय लैमिस थ्योरम RA upon sin 135 is equal to RB upon sin 90 is equal to 1000 upon sin 135. ठीक है. अगर आप कैलकुलेशन करते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको RA की वैल्यू मिलेगी 1000 न्यूटन और RB की वैल्यू मिलेगी 14.21 न्यूटन. ठीक है. अभी ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है ये बाय लैमिस थ्योरम हमने सॉल्व किया. अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस लेके सॉल्व करते तो देखते हैं आंसर कैसा आता है. वही आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए. ठीक है. यही आंसर आना चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस लेके करते तो. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है, तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करेंगे. सो इट विल बी RB साइन 45 एंड इट विल बी RB कॉस 45. ठीक है. RB साइन 45 एंड RB कॉस 45. तो समेशन FX इज इक्वल टू 0. कौन से रह गए, ये हमको पता नहीं है. RA RB कुछ ये अननोन है. ठीक है. फाइंड RA एंड RB. RA और RB हमको फाइंड करना है, नहीं तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे. ये इसको मत देखिए, लास्ट में चेक करेंगे कि आंसर सेम है कि नहीं. सो RA माइनस RB कॉस 45 इज इक्वल टू 0. ठीक है. समेशन FY इज इक्वल टू 0. RB साइन 45 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0. इसमें से हमको RB की वैल्यू मिलेगी. RB इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन 45. देखते हैं कितना आंसर आता है. 1000 अपॉन साइन 45. इट इज RB इज इक्वल टू 14.21 न्यूटन. ठीक है. देख आया आंसर सेम आ रहा है. ठीक है. अभी RB की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1. सो RA इज इक्वल टू RB cos 45. 14.21 cos 45. So RA is equal to 1000 न्यूटन. RA is equal to 1000 न्यूटन. ठीक है. आ गया सेम आंसर. देखो दोनों भी सेम आए हैं. मतलब आप 3 फोर्स जब रहेंगे तो लैमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो. ये भी मेथड यूज़ करते हो. ये मेथड एकदम एक्यूरेट है, मतलब सिलेबस में भी है. ठीक है. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. ओके. हियर इज द 20 kg sphere placed in the range. You have to find out the reaction at A and B. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द FBD. ठीक है. ये कितना है, 30 डिग्री है. सो रिएक्शन जो रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी.
ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। दिस इज आर ए, ये 75 है, ये 25 हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए ऐसे, दिस इज 20 इंटू 9.81, यह आएगा 196.2 न्यूटन, ठीक है। फिर इधर आएगा आर ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है, देखिए 25, 75 नहीं लिखना है, 75 वो प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ठीक है। इसका आर ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 25, आर बी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60, ठीक है। तो आपको हम ये टोटल एंगल फाइंड करेंगे। दिस विल बी 90 प्लस 25, 115, इट विल बी 150 एंड इट विल बी, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 180 माइनस 60 माइनस 25, सो इट विल बी 95। कुछ तो गलत हो गया, सॉरी, ये 15 आता है, ये एंगल आएगा 15 आता है, सॉरी, ये 15 है, ठीक है। सो इट विल बी 105, ये 105 आएगा। बाय लैमिस थ्योरम वन 196.2 this upon sine of this equal to RA upon sine of 150 is equal to RB upon sine of 115, ठीक है। ये कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, RA इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 196.2 इंटू साइन 150 डिवाइड बाय साइन 105, यह आएगा 101.56। आर बी इज इक्वल टू 196.2 इंटू साइन 115 डिवाइड बाय साइन 105, यह आएगा 184.0, नहीं कुछ तो गलत हो गया, ये 105, ये 105 आता है, 105 है, 196.2 इंटू साइन 105 डिवाइड बाय साइन 105, कैंसिल हो जाएगा, साइन 105 ये आता है 196.2 न्यूटन, ठीक है। अगर एंगल गलत हो गए देखिए तो आंसर भी गलत हो जाता है, 0 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एंगल फाइंड करने हैं, बाकी का पार्ट हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।